Hello students, in last class we studied the structure of solid state. Today we are going to study the next chapter and that is solution. As we know, we are surrounded with matter which can be classified as pure substance and impure substance. In the category of pure substance, we categorize elements and compounds, while in impure substances, they are known as mixture. The given mixture may be a homogeneous mixture or it may be a heterogeneous mixture. Homogeneous mixtures are those mixtures whose components cannot be seen through naked eye. They cannot be differentiated on the basis of their appearance. They are uniformly distributed, while heterogeneous mixtures are those mixtures whose components can be seen through naked eye, which can be identified easily. In this chapter, we are going to study about the homogeneous mixture known as solutions. So, solution is a homogeneous mixture whose components can be varied within certain limits. It means जब हम दो या दो से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मिक्सचर बनाते हैं, दैट मिक्सचर इन विच कंसंट्रेशन ऑफ कंपोनेंट लाइज विद इन अ लिमिट, दिस होमोजेनियस मिक्सचर इज नोन एज सॉल्यूशन. Now, depending upon the number of components forming this homogeneous mixture, it may be classified as binary solution. As per the term represent, binary, it means two components. A solution in which two components are present, they are known as binary solution. Another category is ternary solution. Ternary, it means solution containing three components. And when four components are present, it is known as quaternary solution. तो जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, बाइनरी सॉल्यूशन इट मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होते हैं, while ternary solution it means three components are present forming the homogeneous mixture. Quaternary solution ऐसे सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. In this chapter we are going to discuss only binary solution. So binary solution it means two components which are known as solute and solvent. Now remember, if there is only two component in the mixture, one of them will be known as solute while other one is known as solvent. तो जब हम दो कंपोनेंट को मिक्स करेंगे, इस मिक्सचर को बोलते हैं सॉल्यूशन. अब पहली चीज, which component should be considered as solute and which component should be considered as solvent. तो एक सीधी सी बात होती है, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट दिख रही है वही फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होनी चाहिए. जैसे मैंने सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व कर दिया एंड इमीडिएटली वी सॉ अ ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. द अपीयरेंस ऑफ सॉल्यूशन इज लिक्विड स्टेट. It means the solvent is considered as water while NaCl or salt should be taken as solute. But sometimes it also happens when both the components are present in the same physical state.
In that case, we consider them solute as solvent on the basis of their amount. जिसका अमाउंट ज्यादा होता है उसको हम सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं, जिसका अमाउंट कम होता है उसको हम सॉल्यूट कंसीडर करते हैं. Depending upon the physical state of solute and solvent, solution can be broadly classified into 9 categories, in which we are going to write them or study them one by one. Now let us see on the basis of physical state how they are classified. First column, we write here the physical state of solute. Draw the another column. This is for the physical state of solvent. And third column is for the type of solution. Means what is the name of solution. Fourth column is for the example of such type of solution. So starting with the first type of solution. When solute is present in the solid state and solvent is also present in the solid state. Such type of solution is known as solid in solid solution. And best example of this category of solution is alloys. You must be heard the name of bronze, brass, steel. Any kind of alloy is basically a solid in solid solution. Next type of solution, when solute is present in the liquid state but solvent is present in the solid state. Such type of solution is known as liquid in solid solution. अब यहाँ देखिए, सिंस सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, इसलिए अपीयरेंस में ऐसा सॉल्यूशन हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा. एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कैटेगरी इज हाइड्रेटेड सॉल्ट. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स, जैसे हमने लिखा CuSO4.5H2O. अब जितने भी हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं उनकी फिजिकल स्टेट सॉलिड स्टेट दिखाई देती, लेकिन उसमें सॉल्यूट जो प्रेजेंट है वो लिक्विड स्टेट में कंसीडर किया जाएगा. थर्ड कैटेगरी इज व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट इज gaseous state but solvent is again solid state. This type of solution is known as gas in solid solution. And gas in solid solution का example होता है pumic stone. There are so many minerals in which gases are present in the dissolved state. So example is pumic stone. Fourth category is when physical state of solute is solid state but physical state of solvent is liquid state. It is the most common type of solution which can be seen around us. This is known as solid in liquid solution. An example of such type of solution is salt solution. It is salt solution, or we can say it is sugar solution. एक बीकर में हमने पानी लिया, उसमें शुगर डाल दिया, sugar immediately dissolve हो जाएगा and it will form a homogeneous mixture in which we cannot see the particle of sugar, we cannot identify where is the particle of liquid. Next type is when physical state of solute is liquid while solvent is also present in the liquid state. Such type of solution is known as liquid in liquid solution. कभी भी किसी भी दो लिक्विड को हम मिक्स कर दें,
इफ दे आर होमोजीनियस मिक्सचर तो उस मिक्सचर को कंसीडर किया जाएगा लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। बट आपको ये याद रखना है दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिक्सेबल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल्कोहल प्लस वाटर, आप वाटर में अल्कोहल को ऐड कर सकते हैं, इट इज मिक्सेबल इन एनी रेशियो। Next type of solution is when physical state of solute is gas, but physical state of solvent is liquid. Such type of solution is known as gas in liquid solution. And gas in liquid solution का best example है aerated drinks. Aerated drinks. Like cold drinks. Cold drinks में क्या होता है? There is a solution in which carbon dioxide gas is present in the dissolved state. Next type of solution in which physical state of solute is solid state, while physical state of solvent is gaseous state. Such type of solution is known as solid in gas solution. An example of such type of solution is if any sublime substance is placed in air. तो sublime substance का एक एग्जाम्पल हमने लिया आयोडीन। जब हम आयोडीन को एयर में प्लेस करेंगे आयोडीन इमीडिएटली वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज अ sublime substance. So iodine in air, it will be considered as solid in gas solution. Next type of solution is in which physical state of solute is liquid, while physical state of solvent is gas. Such type of solution is known as liquid in gas solution. An example of the solution is humidity in air. Humidity, it means water drops are present in air. So here solute is water which is present in the liquid state. Last type of solution is where physical state of solute is gaseous state, while physical state of solvent is also gaseous state. This type of solution is known as gas in gas solution. And gas in gas solution का best example होता है air. तो फिजिकल स्टेट की बेसिस पर हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई कर सकते हैं एज सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन, गैस इन सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड इन गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन गैस सॉल्यूशन एंड गैस इन गैस सॉल्यूशन. Now in different types of solution, since one of the component is solute and other component is solvent, the amount of solute in given solvent can be expressed by using the term solubility. Solubility is defined as amount of solute in 100 gram solvent to prepare a saturated solution at a given temperature. सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है कितने ग्राम सॉल्यूट को हम सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें.
amount of solvent is specified. It is 100 gram solvent. So how much solute should be dissolved in 100 gram solvent to prepare a saturated solution is known as solubility. Now since solubility depends upon temperature, it must be considered at constant temperature. So solubility it means टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, उसे चेंज नहीं करना है. उस कांस्टेंट टेम्परेचर पर 100 ग्राम सॉल्वेंट में हम कितने ग्राम सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं. दैट क्वांटिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी. Now on the basis of solubility, a solution can be classified as unsaturated solution. Solution. It may be classified as saturated solution. Solution. Or it may be classified as super saturated solution. Solution. देखिए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी उसकी सॉल्युबिलिटी से कम होती है. सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम उस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी एग्जैक्टली उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर होती है. अनसुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम लोग उन सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सीड कर जाती है. अब देखिए इसमें सॉल्युबिलिटी टर्म को हम कैसे समझ सकते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी नीड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर. अब मैंने टेम्परेचर लिख दिया 25 डिग्री सेल्सियस. At 25 degree Celsius, which is considered as room temperature, इस room temperature पर maximum we can dissolve 30 gram NaCl in 100 gram water. तो हम क्या बोलेंगे कि रूम टेम्परेचर पर सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है 30 ग्राम पर 100 ग्राम सॉल्वेंट. नाउ अब मैंने एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया, एक बीकर लिया, इस बीकर में 100 ग्राम वाटर प्रेजेंट है, इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया, सॉल्यूशन बन गया. द क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट इज ओनली 25 ग्राम. अनदर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड. इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए भी हमने 100 ग्राम वाटर लिया, सॉल्ट डाला और इसमें एग्जैक्ट 30 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है. एक तीसरा सॉल्यूशन हमने बनाया, बीकर में 100 ग्राम वाटर लिया, उस वाटर में हमने सॉल्ट ऐड कर दिया. अब यहां सॉल्ट की क्वांटिटी है 40 ग्राम. तो यहां मैंने 3 अलग अलग सॉल्यूशन बनाए हैं और इन तीनों सॉल्यूशन को समझते हैं विच इज अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड. तो देखिए मैंने लिखा है कि रूम टेम्परेचर पर maximum of 30 gram NaCl can be dissolved in 100 gram water. The first solution is containing only 25 gram. It means this solution is considered as unsaturated solution. While in second beaker, the amount of solute is 30 gram, which is equal to its solubility. So this solution is considered as saturated solution. The third one is containing 40 gram NaCl. Since room temperature पर उसकी solubility केवल 30 ग्राम की है, but this solution is having 40 ग्राम NaCl, तो ऐसे solution को हम लोग consider करेंगे super saturated solution. Super saturated solution. तो सॉल्युबिलिटी की बेसिस पर सॉल्यूशन को इस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है. अब देखिए ऐसे सॉल्यूशन पर हीटिंग का क्या इफेक्ट हो सकता है. इट मीन्स व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. मान लीजिए मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया
तो क्या सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा और इट विल रिमेन एज सच। इफ टेम्परेचर को मैंने कम कर दिया तो क्या सॉल्यूशन का नेचर चेंज हो जाएगा और इट विल रिमेन एज सच। इसको देखते हैं। फर्स्ट केस इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया। इट मीन दिस सॉल्यूशन इज हीटेड। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है। उसी की बेसिस पर हम लोग हीटिंग का या कूलिंग के इफेक्ट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे रूम टेम्परेचर पर NaCl की सॉल्युबिलिटी है 25 ग्राम। अब मैंने टेम्परेचर को 25 डिग्री से बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिया। At 30 degree, the solubility of NaCl becomes 35 gram. तो अब आपको देखना है कि सेम सॉल्यूशन इफ इट इज हीटेड, तो हीट करने का मतलब हुआ जो क्वांटिटी उसमें प्रेजेंट थी वो और कम दिखेगी, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम हो गई। तो हम क्या बोलेंगे? द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन अपॉन हीटिंग बिकम्स मोर अनसैचुरेटेड। अब इसी सॉल्यूशन को यदि मैं कूल कर दूं, जब हम सॉल्यूशन को कूल करेंगे तो उस टेम्परेचर के साथ साथ उसकी सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी। जैसे मैंने टेम्परेचर 25 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया, तो 20 डिग्री पर NaCl की सॉल्युबिलिटी है ओनली 20 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर। तो इस समय तो सॉल्यूशन के अंदर 30 ग्राम प्रेजेंट है और इस समय सॉल्यूशन के अंदर 25 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहाँ जो सॉल्यूट का अमाउंट दिखाई दे रहा है वो उसकी सॉल्युबिलिटी से और ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं? जो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हमने बनाया था, अपॉन कूलिंग दिस अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ इफ वी आर टेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब हमने सेकंड भी कर लिया है। रूम टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी है 30 ग्राम एंड दिस सॉल्यूशन इज ऑलरेडी हैविंग 30 ग्राम NaCl। मान लो मैंने इस सॉल्यूशन को हीट कर दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री से बढ़ाकर 30 डिग्री कर दिया, तो यहाँ जो क्वांटिटी सॉल्यूट की प्रेजेंट है वो सॉल्युबिलिटी से कम हो जाएगी एंड दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकम्स unsaturated saturated solution. If we are cooling this solution, टेम्परेचर को हम कम कर दे, तो टेम्परेचर को कम करने का मतलब हुआ उसकी सॉल्युबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। अब यदि सॉल्युबिलिटी कम हो गई है तो जो अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट है वो उसकी सॉल्युबिलिटी को एक्सीड कर जाएगा एंड दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन विल बिकम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ थर्ड केस इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को यदि हम हीट सप्लाई करें तो हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए जितना क्वांटिटी इसमें प्रेजेंट था वो उसके सॉल्युबिलिटी के बराबर हो जाएगा एंड अपॉन हीटिंग इट बिकम्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब हम कूल करना शुरू करेंगे, अपॉन कूलिंग solubility decreases and extra amount of solute will appear in the solid form as crystal। तो हम क्या बोलेंगे? कूलिंग करने पर क्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो गई। क्रिस्टलाइजेशन में एक्स्ट्रा सॉल्यूट सॉलिड के फॉर्म में क्रिस्टल के फॉर्म में सेपरेट हो जाएगा एंड द रिमेनिंग सॉल्यूशन विल बी सैचुरेटेड सॉल्यूशन।
तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन एक ऐसा सोल्यूशन है जिसको हीट कर दिया जाए तो भी सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाएगा और कूल कर दिया जाए तो भी वो सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा. It means we can say that supersaturated solution is a metastable state and any kind of disturbance leads to the crystallization or leads to the formation of saturated solution. ऐसे किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं. सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. द फर्स्ट concentration term is strength. Strength is defined as mass of solute per liter of solution. It means 1 liter solution में कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है उस क्वांटिटी को बोला जाएगा उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ. अब देखिए सॉल्यूट का मास हमें एक्सप्रेस करना है ग्राम में एंड सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेना है लीटर में. तो स्ट्रेंथ की यूनिट क्या लिखेंगे? ग्राम पर लीटर. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस बीकर में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है. इस बीकर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया गया 2 लीटर और इस 2 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट है 40 ग्राम NaCl. अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, तो स्ट्रेंथ एक बहुत सिंपल सा टर्म है. स्ट्रेंथ का मतलब हुआ 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है. आप यहां पर देख सकते हैं 2 लीटर सॉल्यूशन में 40 ग्राम NaCl प्रेजेंट है. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने ग्राम NaCl हुआ? ओनली 20 ग्राम. अब इस तरीके से आपसे बोला जाए तो आप इस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या बताएंगे? दिस इज 20 ग्राम पर लीटर. द नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म इज परसेंटेज. परसेंटेज एक सिंपल सा टर्म है, एक जनरल एवरीडे लाइफ में यूज किया जाने वाला टर्म है. परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन. पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन 100 पार्ट सॉल्यूशन में कितने पार्ट सॉल्यूट के हैं उसको बोलते हैं परसेंटेज. नाउ परसेंटेज को फर्दर हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते हैं, इट मे बी परसेंटेज बाय मास और इट मे बी परसेंटेज बाय वॉल्यूम. सो परसेंटेज बाय मास इट मीन्स mass of solute divided by mass of solution into 100. 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितने ग्राम सॉल्यूट के प्रेजेंट है. जब हमने सॉल्यूट का भी मास लिया और सॉल्यूशन का भी मास कंसीडर किया है तब इस कंसंट्रेशन टर्म को बोला जाएगा परसेंटेज बाय मास. परसेंटेज बाय मास को हम लोग इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज परसेंटेज W/W. ऊपर वाला W डिनोट करता है सॉल्यूट के मास को, डिनोमिनेटर में जो W लिखा हुआ है दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन. Now if mass of solute is given, mass of solution is given, applying this formula we can find out what is the percentage of the mixture or solution. Next term is
percentage by volume. When both solute and solutions are present in liquid state, in that case we can use percentage by volume. And this is equal to volume of solute divided by volume of solution. Into 100. Now since we are taking both of them in liquid state, so it is written percentage V by V. Now again the numerator V is for वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड डिनोमिनेटर में जो V लिखा है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को. परसेंटेज बाय वॉल्यूम में कई बार हम एक दूसरा टर्म भी यूज करते हैं. हियर परसेंटेज इज रिप्रेजेंटेड एज W by V. W by V इट मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट but volume of solution is taken. Suppose any salt or solute is present in the solid state. तो ऐसे केस में हम सॉल्यूट का मास कंसीडर करेंगे बट सॉल्यूशन का वॉल्यूम कंसीडर करेंगे. अब आप ये एग्जांपल देखिए, इससे क्लियरली आपको समझ में आएगा. जैसे मैंने एक टर्म लिखा 9.8% सल्फ्यूरिक एसिड और इसके साथ सिंबल लिख दिया W by W. तो जब भी कोई ऐसा टर्म लिखा हुआ है इसको इंटरप्रेट करेंगे 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड. जो न्यूमरेटर का W है ये बता रहा है मास ऑफ द सॉल्यूट एंड हियर मास इज 9.8 ग्राम. तो ये लिख दिया आपने 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन. 9.8 gram sulfuric acid in 100 gram solution. If it is written like this, 9.8% sulfuric acid, W by V, तब हम इसे क्या कंसीडर करेंगे? This is percentage by volume and this term will be written like this, 9.8 gram sulfuric acid in 100 milliliter of solution. अब आप देख रहे हैं जब हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिलीलीटर में लिया तो सॉल्यूट के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे. जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम हम लीटर में ले रहे हैं तो फिर हम सॉल्यूट के मास को केजी में एक्सप्रेस करेंगे. एंड इन दिस वे if we understand the term what is written, we put the values correctly in the formula and can solve the question.